There you have it all. The cost of doing nothing isn't just financial, it's the cost of lost potential, of time, of dignity, of independence. At ACH Rehab and Recovery Center, our mission is simple: deliver the fastest recovery through structured and science based rehab. If you and your loved ones are recovering from stroke, don't waste your time waiting, where therapists can accelerate. Hello, everyone, and welcome to our podcast, where we bring you the science, story, and system behind getting patients back to their life stronger, smarter, and faster. In today's episode, we are asking a hard but important question: what if nothing happens after a stroke? What if rehab is delayed, or worse, or skipped? Joining us is someone who doesn't treat a stroke, he transforms the stroke care. Please welcome Dr. Kaushik Sundar, consultant neurology and interventional neurology, clinical lead, comprehensive stroke care. He has also done his fellowship in stroke and neurointerventional. Also, he has done a stroke diploma with ESMINT. So, sir, when rehab is delayed or ignored, what is the fallout? Like, can you explain the cost of doing nothing? आपके घर में who cooks? Me. You. Yes. Who else is there in your house? My mom cooks. So you and your mom cooks. Who else is there in your house? If you don't mind telling. आप झूठ भी बोल सकते हो फिर भी. आपके घर में और कौन कौन है? मेरा पापा है और मेरा भाई है. वो दोनों कुक करते हैं? मेरा पापा करते हैं, भाई बहुत भी. अच्छा. जी. अच्छे तरह से कुक करते हैं. थोड़ा बहुत. सबसे रेटिंग में अगर आपके घर पे कुकिंग बोलते हैं तो हाउ डू यू रेट फ्रॉम 1 to 4? My mom is the first. बेस्ट. जैसे सब कुछ बना देते हैं. जी. Then you Me. have also Then my learned. That is like basic level cook. Basically. भाई को तो कुछ आएगा नहीं मेरे जैसे. ठीक है. अब मान लीजिए फॉर सम रीजन योर मॉम हैज फॉल्ड सिक. ठीक है. और ऐसे सिकनेस है जो किचन में नहीं जा सकते. Who will take up the responsibility? Or who else will take up the responsibility? If not you, your dad. Of course, your brother is the last. Now, if any of you enter the kitchen on day 1, will you be able to cook like your mom? Why? You have not had that skill set. Correct? Now, brain का जिस जगह पे डैमेज हुआ है, जैसे पैरालिसिस होता है, that means that that part of the brain has been working for so long doing that particular activity. अगर मेरे ये हाथ का और ये पैर का मूवमेंट के लिए मैं काम कर रहा तो एक जगह था ब्रेन में that let us say 40 years 50 years से it was working. Suddenly that area shut down. जैसे आपकी माँ ने बोल दिया कि आज से मैं किचन नहीं जा रहा हूँ. Now somebody has to take over this function, correct? Now unfortunately brain में ऐसे है कि सब जो बाकी लोग हैं वो आपके भाई जैसे हैं. Who doesn't know even minimum cooking. But the house has to survive. Now, are you going to tell your brother, ठीक है आज छोड़ दीजिए 2 महीने के बाद खाना सीख लेंगे? क्या you will tell नहीं अभी माँ सीख हो गया अभी आपको खाना पकाना सीखना है. You learn to cook now. What would your answer be? Do you want to learn? You ask your brother to cook, start learning to cook now, or you will tell after 3 months we'll see when your mother is not cooking in the kitchen anymore. What would your answer be? This is what rehab is. So the moment you say that I do not have the capacity to do something, brain वही बोलता है अभी मैं ये हाथ और पैर का जो कनेक्शन है मेरा कट हो गया. अभी ऐसे नहीं बोल सकता, इसे इंतज़ार करते हैं जब तक होता है. जैसे घर के इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो ट्रिप स्विच हो गया और आपका फैन लाइट नहीं जल रहा है, आप बैठेंगे नहीं ना. इधर यू विल फिक्स द ट्रिप बैक और यू विल फाइंड सम अदर वायरिंग दैट विल वर्क. सो रिहैब में डिले इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेट्रीमेंटल फैक्टर. मतलब आप जितना डिले करते हो रिहेबिलिटेशन उतना डिले होता है आपका रिकवरी. और ऐसे हो जाता है कि एक ना एक दिन वो किचन ही बंद हो जाता है. इमेजिन अ किचन वेयर यू आर नॉट कुक्ड फॉर 3-4 months. अभी क्या होगा? मैं बोलूँगा आप खाना पका लीजिए, अंदर जाएंगे तो फ्रिज में कुछ है ही नहीं, या जो भी रहेगा वो 3 महीने का पुराना रहेगा, तेल नहीं रहेगा, शक्कर नहीं रहेगा, देयर विल बी पेस्ट इन्फेस्टेशन. हाउ विल यू कुक?
So you have to find somebody to get trained for the functions that you have lost. So rehabilitation में delay is a huge problem. You cannot delay. You should not delay. It should be immediate. अगर एक पेशेंट बेड रिडन है तो एटलीस्ट उसको व्हील चेयर बनाना है. अगर व्हील चेयर बाउंड है एटलीस्ट उसको खड़ा करना है. खड़ा कर दिया, is not able to walk, then at least make him support to walk. If he is able to walk with support, see to it that at least he walks independently. You are able to understand. You have to go forward. इतना किया तो आगे और कुछ करना है, आगे और कुछ करना है. ऐसे पकड़ के जाएंगे, then those people become independent. So, no to delay. If you feel there is a patient who has a neuro problem, either because of stroke or because of surgery or because of anything else, do not delay rehab. अभी एक golden words मैं बताता हूँ. हमारे पास ऐसे कोई दवाई या कोई प्रोसीजर या सर्जरी ऐसे कुछ नहीं है जहाँ से पेशेंट उठ के बैठ के घर जाता है. Most of the medicines that we give today is to prevent another stroke from happening. जो कॉर्नरस्टोन है, जो आप पूछ रहे हो कि पेशेंट खड़ा होना है, बात करना है, खाना खाना है, ये सब comes under the purview of rehabilitation. अच्छा रिहैबिलिटेशन अगर नहीं होता है, सिर्फ दवाइयों से या हॉस्पिटल विजिट से या ब्लड टेस्ट से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. So sir, we often say that we need faster recovery or early recovery. So we want to know how early is early. Like what is the ideal time for a faster recovery or a faster stroke phase? Okay. आपके ब्रेन में कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स यूज करते हो? यू डोंट अप्रॉक्सीमेटली बोलिए. 1%, 10%, 20%, 40%, 100%, क्या लग रहा है? आपका जो ब्रेन का पूरा जो कैपेसिटी है, आप उसमें से कितना यूज करते हो अप्रॉक्सीमेटली? I think 30 to 40%. That's a higher number. Even with high IQ levels, people use only 10 to 20% of their brain, at least, cognitively. बाकी सेल्स का क्या फंक्शन है? कैन यू थिंक? अगर मैं 10-20% का सेल्स ही यूज कर रहा हूँ तो बाकी 80% का क्या फंक्शन है? अगर शायद हम 80% यूज करते हैं, probably we will become like Swami Vivekananda or something, we become clairvoyants. But most important thing is brain में जो बाकी 80% का है, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब cells that are capable of doing other things. जैसे आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कोई और जगह से हम सेल्स एक्टिवेट होता है जो मेरा हाथ को काम करवा रहा है. Are you able to understand what I'm saying? Why is this important from the recovery point of view is as you get older, जैसे आपका उम्र 70, 80 ऐसे जाता हो रहा है, आपका न्यूरोप्लास्टिक सेल्स जो है वो कम होते जाते हैं. समझ में? तो आपके और मेरे उम्र में या people younger than us have a very high amount of neuroplasticity. Whereas people who are 70, 80 year old, अगर उनका brain भी देखते हैं, they are all shrunken, atrophy. That's the medical term they use, shrunken. मतलब brain बहुत छोटा हो गया. क्यों छोटा हो गया? क्योंकि जो extra cells की जो जरूरत है वो है ही. तो now imagine a patient who has a brain injury and he is 20 year old. And you have a patient who has a brain injury who is 80 year old. इसमें रिकवरी किसका बहुत लेट लगेगा? 80 years जो है. क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्व सेल्स है ही नहीं. So 2 things will matter. 1, कितना ब्रेन डैमेज हुआ है, मतलब कितना बचा है. 2, एज आपका कितना है. Now a large damage in a very elderly population, जैसे 70-80 years का हो गया, large brain damage हो गया, उनका रिकवरी विल बी द स्लोएस्ट. 20 year old का, 25 year old का स्मॉल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, माइल्ड इंजुरी इन द हेड, रिकवरी विल बी क्विक. सो द रिकवरी इज बेस्ड ऑन द न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड द एज. दिस इज वन. सुपर सेकेंड पॉइंट एक मैं बताता हूँ आपको समझने के लिए. मान लीजिए एक पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फ्रैक्चर हो गया है, उसको खड़ा होके आपको चलाना है, तो आप क्या करेंगे उसका? What will you do as a rehab? क्या करेंगे आप? So basic physiotherapy will work on that. तो फिजियोथेरेपिस्ट जाएंगे, उसके बात करेंगे. क्या बात करेंगे उससे? क्या बात है?
करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, एनकरेजमेंट देना है, खड़े हो जाइए। न्यूरो में प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी पेशेंट्स हम जो बता रहे हैं वो समझ भी नहीं पाते। खड़ा हो जाइए, ऐसे ही देखते रहेंगे, मोटिवेशन नहीं होगा। Depression one side, what you're talking about is a mental problem. What I'm talking about is a neurological problem. For you to understand and express or act, उसके लिए भी आपका न्यूरोलॉजी सर्क्यूट्स ठीक होना चाहिए। मान लीजिए पेशेंट कोमा में है, समझ में आ रहा है? So he doesn't understand what you're saying. He doesn't tell you, आप बोलेंगे बैठ के जाइए, सांस दो चलिए, उसको समझ में ही नहीं आएगा। Now you are talking about rehabilitation for these patients. तो इसका और भी लगेगा। तो पहला चीज़ है अमाउंट ऑफ डैमेज, सेकेंड है एज, एंड थर्ड इज द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एरिया इंटैक्ट। सी वी आर गोइंग टू गिव सर्विसेज ऑफ रिहैबिलिटेशन एंटायरली थ्रू कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो वीडियो को कोमा पेशेंट को दिखाएंगे वो ही विल नॉट गेट इंस्पायर्ड एंड सिट अप। तो जब तक हमारा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस is reaching some person who has an intact communication tract, उसको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है and he has to respond. पर वो नहीं हो रहा है, that becomes even more difficult. So it's not one size fits for all. मेरे घर पे एक पेशेंट था जिसका स्ट्रोक हमने या इस रिहैब सेंटर में किया था, 2 दिन में ठीक हो गया। दूसरा पेशेंट नहीं मैं वहाँ पे गया था, 1 महीना हो गया। वैसे नहीं होगा, because they are not the same patients. So you'll have to quantify them. You have to see which patient, how much it is, and then only do. Thank you, sir. Okay, sir. So that's lead perfectly to our next question. So what makes a structured rehab a game changer? तो एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं ना, हम सिर्फ फिजियोथेरेपी सोचते हैं। जी। So people are not aware that rehabilitation goes beyond physiotherapy. समझ में? तो रिहैबिलिटेशन में ऐसे क्या चीज़ है जो फिजियोथेरेपी में नहीं है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब लोग बोलते हैं रिहैब करते हो, हाँ फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, 4 दिन में एक बार कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन में और काफ़ी सारा चीज़ है, जैसे कि फिजियोथेरेपी के अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी है, पीडियाट्रिक भी है, and you are actually looking at a patient and their requirements and accordingly tailor making a rehab program for them. समझ रहे हैं? ये बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं या इस तरह रिहैब सेंटर्स में होते हैं। एक घर से बैठ के एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के रिहैब चल रहा है, doesn't make sense. समझ में आ रहा है? So people lack awareness about what is called structured rehab. ठीक है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आपको घर पे एक फर्नीचर की जरूरत है, तो क्या फर्नीचर, मैं तो अभी सोफा लाया, शायद आपको किचन में कुछ फर्नीचर लगे या आपको बेडरूम में कोई फर्नीचर लग सकता है। हाँ, मैंने सोफा ला लिया इसलिए फर्नीचर हो गया, घर फर्निश्ड है, वैसे नहीं बोलते। यू आर गोइंग फॉर अ फर्निश्ड अपार्टमेंट, यू सी वन सोफा एंड दे से फर्निश्ड। समझ में? तो घर का जितना रिक्वायरमेंट्स है रूम के हिसाब से आप वो रूम को सजाना है। वैसे ही फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, पीडियाट्रिक रिहैब, गेट ट्रेनिंग, ये सब एक एक रूम का रिहैब, एक एक रूम का एंटिटी है। तो यू हैव टू स्ट्रक्चर। शायद सब लोग को सबकी ज़रूरत नहीं है। शायद एक पेशेंट को जो स्मॉल स्ट्रोक के साथ आया है उसको एम्बुलेशन की ज़रूरत है, स्पीच की ज़रूरत नहीं। कुछ पेशेंट है जो अच्छा चल पा रहा है बट खाना मुंह से नहीं खा पा रहा है, उनका सिर्फ स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका हाथ पैर काम कर रहा है, बोल भी सर रहा है, बट फाइन मूवमेंट्स जैसे कीबोर्ड में काम नहीं कर रहा है, पेंटिंग नहीं कर पा रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर द डेफिशिएंसीज वन स्ट्रोक हैज कॉज्ड एंड देन वील हैव टू टेलर मेक अ रिहैब प्रोग्राम फॉर देम। सो स्ट्रक्चर्ड रिहैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर न्यूरो रिकवरी। Thank you, sir. So, sir, for families, they're listening right now, they're very unsure about whether rehab is important or even necessary. What did you say, sir? See, I think family का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, I think there are 2 major problems when it comes to family. First is the cost. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली रिहैब ऐसे एक फील्ड है मेडिसिन में, इज नॉट वेरी वेल कवर्ड बाय इंश्योरेंस. So who's going to bear the costs?
especially when we do not know how long it is going to take. So people are ready to pay provided they have some clarity on how long is the rehab is going to be. So पहला चीज़ है rehab क्या है वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है. सेकेंड है एक बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करके आए हैं, सो मोस्ट ऑफ देयर लाइफ सेविंग्स एंड एवरीथिंग इज गॉन, एंड देन वी आर नॉट गिविंग देम क्लैरिटी हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक. दिस इज़ वेरी स्कैरी फॉर फैमिली को. अगर हम रिहैब के लिए जा रहे हैं, एंड पार्टली मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, बिकॉज अभी हॉस्पिटल्स या सर्विस प्रोवाइडर्स या लैब्स सबको कैसे सोच रहे हैं कि समहाउ दे आर गोइंग टू डू समथिंग टू टेक मनी फ्रॉम, दे आर स्कैर्ड टू बी चीटेड. तो आप एक अनसर्टन टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं और उसमें पैसे भी लग रहा है और यू आर स्कैर्ड टू बी फूल्ड बाय द सिस्टम. सो फैमिली को इतना बताना चाहता हूँ कि आप अगर रिहैब के लिए जो बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इज़ इट नेसेसरी और नॉट, इज़ इट रियली रिक्वायर्ड और नॉट, एटलीस्ट यूज़ AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स. आज तो ChatGPT है, Gemini है, whatever I am saying or whatever she is saying or whatever any other group is saying, just put those keywords into those places and see whether what we are saying is true or not. AI is unbiased. शायद मेरे को अगर आप आएंगे तो there will be a fee for me or for the hospital. Maybe she will have a fee from the hospital. So we will always look biased. Forget us. जो diagnosis आपको डिस्चार्ज समरी में मिला है, जो काउंसलिंग आपको कई रिहैब सेंटर में मिला है, try to put that into artificial intelligence platforms and see whether what we are saying makes sense or not. Then you will understand that rehab is very important. Don't go by your neighbor or somebody else who's not, I would say, oriented towards. क्योंकि rehab नाम से चीज़ जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किससे बात करेंगे? जैसे कोविड टाइम पे we were doing so many things, किसी को भी पता नहीं था क्या करना है. बट रिहैब इज़ अ वेल ट्रैक टॉपिक. तो अगर आप आर्टिफिशियल गूगल में सर्च करेंगे, अभी तो ChatGPT में भी डाल देंगे इसके ऊपर, यू विल गेट वेरी वेरी गुड इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट्स ऑन व्हाट रिहैब इज. गो बाय दैट. सो फर्स्ट थिंग इज गेट एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. सेकेंड थिंग इज ये जो फाइनेंस की जो बात है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज look into insurances or insurance availabilities for patients who have stroke or neurological problems. तो हमको क्या बोलता है, कोई भी एजेंट आपको जब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते हैं, वो ऐसे बेचते हैं जैसे कि फैमिली इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, टॉप अप ऐसे बोलते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड द क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस. ये क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई भी पेशेंट जो ICU में एडमिट हो जाता है, आप वो इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया होता तो लंप सम मनी आपको आ जाता है जो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो. Be it rehabilitation, be it home-based care, you can use it. So suddenly you get lump sum monies which you can use specifically for these purposes, and the premium for this is low. And the most important thing that I would like to tell is, ये जो एक्सपेंस को आप जो सेव करने के लिए सोच रहे हो, अगर अरे इतना कॉस्टली है रिहैब 1 मंथ का 2 मंथ का, ट्रस्ट मी, अगर ये पेशेंट को आपसे ठीक से ट्रीट नहीं किया, then that patient becomes a burden for you in home, and the amount of money that you will be spending for this patient from there further will be huge. आपको ये 1 महीने 2 महीने का जो एक्सपेंसेस जो आप सोच रहे हो, उसको आप किसी भी तरह से अगर कवर करेंगे, शायद आपको 2 साल 3 साल का एक्सपेंसेस कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब एक गाड़ी है जो इंजन चेक लाइट आपको बता के जा रहा है, आप इग्नोर करेंगे, गाड़ी चलेगा, बट एक ना एक दिन ऐसे सर्विस आएगा कि आपको शायद गाड़ी को ही भेजना पड़ेगा. सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंस. आई अंडरस्टैंड दैट रिहैब आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन कुड बी एक्सपेंसिव. The only 2 ways to do that is first get equipped to understand what rehab is. Don't believe me, don't believe anything that you see. Better to go, because ये सब आपका awareness videos हैं, तो इसमें क्या सच है क्या नहीं है, nobody can tell. It's information that comes to you very easily. But put this information in AI platforms and see whether whatever I'm saying or whatever she's saying is true. Second, if you are young, if you are handling people in your family who are very elderly, जैसे पापा है, मामा है, grandparents है, then look into your insurance options to cover them.
एक कॉर्पोरेट ऑफिस का इंश्योरेंस विथ फ्लोटर पॉलिसी वोंट वर्क. You'll have to look at critical care insurances and all and keep them with you, and then see whether this rehab works for you. But if you don't do rehab for these first 2 months, the money that you save is nothing compared to what you will be spending on these patients for a long time. मतलब जितना भी पैसे आप 1-2 महीने के लिए बचाएंगे, ट्रस्ट मी, वो 1 साल 2 साल का जो खर्चा आएगा, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट. और उसके बाद जैसे मैंने बताया था, वापस आके रिहैब में इसमें कुछ कर सकता है कि नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मतलब एक डैमेज प्रोडक्ट ऐसे हो जाता है कि हम रिपेयर से भी ज़्यादा हो गए, अभी उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते. उस परिस्थिति में आ जाएंगे, देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग टिल दैट पेशेंट इज अलाइव. सो आई नो इट्स अ स्कैरी प्लेस, बट द ओनली वे टू फेस दैट फियर इज टू बी नॉलेजेबल एंड बी प्रिपेयर्ड. मतलब आप उसका क्या क्या है रिहैब के बारे में वो पढ़ाई करके रख दीजिए जब भी पेशेंट कोई न्यूरो प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट फाइनेंशियली. Thank you, Dr. Kaushik Anything Sundar, else? for sharing your insight. Okay. Thank you so much. Thank you for joining us for this awareness video.